मेरे हर प्रीतम की बात सुनावे, सो पाई सो मेरा भी। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। नारू मर नर काम आवे, नारू मर नर काम आवे, पशु मर दस काज सवारे, पशु मर दस काज सवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। हाथ जल जैसे लकड़ी का टूटा, हाथ जल जैसे लकड़ी का टूटा, केस जले जैसे घास का फूला, केस जले जैसे घास का फूला। अपने कर्म गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। कौन कभी कभी मर जाते, कौन कभी कभी मर जाते, चंपा मुंह में आते, चंपा मुंह में आते। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी जो रचना जिहदा असी विचार करन जा रहे हैं, वो है भगत कबीर साहब की रचना है। राग गौंड दे अंदर पन्ना नंबर 870 गुरु ग्रंथ साहब जी के विचकार सुशोभित है। असी जदों भी गल करते हैं जी कि सानू जो मनुखा जन्म मिलिया है, ये शरीर मिलिया है, ये दुनिया के अंदर रिश्ते नाते मिले हैं। भगत कबीर साहब की जिन्नी भी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज है, इतों की मतलब कोई वितकरा नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज एक एक अखर गुरु है। क्योंकि गुरु नानक साहब ने दसिया ना कि सिख का गुरु तो शब्द है, शरीर नहीं है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਿੱਪੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਰ ਬਾਣੀ ਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ ਬਾਬਾ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਪੜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਐਫਰਟ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਆਣਗੇ। ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਈਸਟਵਰਡ ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਚ ਈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਵੈਸਟਵਰਡ ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਚ ਦ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਦਕਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਜੇ ਦਕਸ਼ਿਣ ਵੱਲ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਖਣ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਈਸਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਈਸਟ, ਵੈਸਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵੈਸਟ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਉਹ ਕਰਮ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਇਹ ਉਹ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਫਰਟਸ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ SOP ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ KRA ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਏਰੀਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R&D ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਰੂ ਪਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
कि जी वो देखो उस टाइम भगत कबीर साहब के टाइम की गल है कि बंदा मरदा सी ते सीधी उन्होंने अग ला देंदे सी, वो किसी काम नहीं आंदा सी। ते जदों पशु मरदा सी ते ओदी हड्डी, ओदी खाल, ओदे वाल तक काम आ जांदे सी। वो तक तो अज तक आ रहे हैं, पर समा थोड़ा जिहा चेंज हो गया। हुण ते जे नर भी मरदा है तो वो काम आ जाता है। जदों नर मरदा है कहंदे ने जी काम आ जाता है, ओदियां अखां निकाल लिया जांदियां ने, ओदे बॉडी पार्ट्स निकाल ले जांदे ने, किसी दा कुछ निकाल लिया जाता है। ते सानू ना गुरबाणी ते भी एक बार रिसर्च करनी चाहिए। ये उन्होंने गल सी कि मैं कहा जी सॉरी आई डोंट अग्री विद यू। जरा ध्यान नाल गुरबाणी च जेड़े अखर, जेड़ियां मात्रावां, जेड़ी टिप्पी तक लगी है उसका मतलब समझो। इत्थे लिखिया नरू, नर मरे नहीं लिखिया, नरू मरै, मतलब एक मनुख दी मनुखता मरै। नरू का मतलब है मनुखता। जे एक इंसान दी इंसानियत मर जाती है तो वो इंसान किसी के काम का नहीं रहता। नरू मरै, नर का मतलब इंसानियत मर गई, इंसान किसी काम का नहीं। उहदे मन च किसी वास्ते दया ही नहीं, उहदे मन च किसी वास्ते प्यार ही नहीं, क्योंकि ये सारिया चीज़ां इंसानियत के नाल आंदियां ने। माफ करना किसी धर्म नाल नहीं आंदियां, बिल्कुल नहीं आंदियां। इत्थे नहीं तो भगत कबीर साहब इस गुरबाणी च कह देंदे धर्म मरै नरकाम ना आवे, पढ़ाई मरै नरकाम ना आवे, पर उन्होंने साफ लिखा है कि जे इंसानियत मर गई तो इंसान किसी के काम का वो काम नहीं आता। अगे पशु मरै 10 काज सवारा। हुण किहड़े पशु की गल कर रहे हैं? पाशविक वृत्ति, मेरे अंदर बैठा होया वो पशु, मेरी पशु वृत्ति, पशु वृत्ति मर जाए तो 10 काज सवारे, मतलब फिर सारे दे काम भी आता है। फिर उहदे मन के अंदर दया भी है, उहदे मन के अंदर प्यार भी है, उहदे मन के अंदर भावना भी है, क्योंकि जिहड़ा पशु है वो ये चीज़ों को रह नहीं देता। कितनी शानदार, कितनी सौखी लैंग्वेज के अंदर सानू गुरबाणी च इन्ने सारे संदेश मिलते हैं। मैं पिछली बार गल की सी कि जे सिख कवाना तो सिख बन के दिखाना पड़ेगा अपने एक्शनस के नाल, नाम दे नाल नहीं कि जी मैं अपनी किते फार्म भरना हो तो मैं अपना धर्म सिख लिख देवां। जे मैनू किसी को दसना हो तो मैं अपने आप को कह देवां कि जी मैं सिख हाँ, नहीं, मैनू बन के दिखाना पड़ेगा। तो सिख बनने का इक्को तरीका है, गुरु की गल नू ऑर्डर मन के मन लेना, उसते चलने की कोशिश कर लेना। चल पावांगे, अज कोशिश करांगे, कल चल पावांगे, कोशिश तो करिए। और स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, ये कोई सलाह नहीं है कि भाई चल इदा कर लै तो तू सिख बन जा। नहीं, जे सिख है इदा करेगा तो ही सिख है, नहीं तो वर्दी उतार घर चला जा। कोई बंदिश नहीं है, किसी ने डंडा मार के सानू नहीं किया कि सिख बनो, किसी ने गोली मार के बंदूक साडे सिर ते रख के नहीं किया कि तू अपने आप को सिख कवा। ये मेरी मर्जी है, मैं कहना जी मैं सिख हाँ तो मैनू गुरु की मननी पेगी। जे मैं गुरु नू मनदा वां, गुरु नू गुरु कहना वां तो उहदे दिखाए राह ते चलना पड़ेगा, तां मेरा जस्टिफाइड होता है। अपने नेम प्लेट ते लाया सिख, सिंह ते मैं पिछली बार भी गल की सी, सारे ही ला लेंदे ने। बिहार तो मेरे दोस्त है ने, उन्होंने नाम दे अगे सिंह है। यूपी चो मेरे दोस्त है ने, राजस्थान चो ने, गुजरात चो ने, उन्होंने नाम दे अगे सिंह है, पर वो अपने आप को सिख नहीं कहवाते। असी जे कहवाने आ सानू सिख होके दिखाना पड़ेगा। अगली गल अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानो बाबा रे। हुण अगे साडा होण की जा रहा है, जिस शरीर दे उत्ते एडा माण करते हैं कि जी मैं बड़ा सोहना, मैं बड़ा डील डॉल वाला, मेरी कद काठी बहुत वधिया, मेरी बॉडी ही सब तो बेस्ट हैगी है। उहदा हाल की होना है, हार्ट जले जैसे लकड़ी का तूला, हार्ट जले जैसे लकड़ी का तूला, और केस जले जैसे घास का पूला। सुक्की कहाँ होगी?
एक बार जरा तीली ला के देख लो, करना ना कितने घर जाके वैसे गल कर लें, कोई वीडियो देख लेना कि तो देख लेना कि सुखी घाह किदा जो तीली लग जाए माचिस की, तो किदा फड़ 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 करके चलती है, उदा ही केस सड़ जाने। और केस सिर्फ सिर ते नहीं ने, पूरे शरीर ते ने, रोम कहने हैं जिन्होंने, ये जलनगे ना जदों तो घाह दे पूले वाकन खत्म हो गए। तो जिहड़ियां हड्डियां ने ना, जिन्हां ते बड़ा मान करते हैं जी मेरी हड्डी बड़ी स्ट्रोंग है, मिर्च ते ताकत ही बड़ी है, वो भी लक्कड़ दे वाकन जिद्दां लक्कड़ नूं अग लगी होंदी है, वो खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल वजों दस्सिया है कि अपने कर्मां नूं किद्दां सिद्धा रखना है कि मैं राइट डेस्टिनेशन ते पहुंच जाऊं। Which way I should take so that I reach my destination, कि मैं जाना साउथ है तो चल पवा नॉर्थ वाल, कोई फायदा नहीं। जे मैं जाना ईस्ट वाल है, चल पवा वेस्ट वाल, कोई फायदा नहीं। अपने कर्मां नूं सिद्धा रखना है, क्योंकि ओदी गत तुसी नहीं जानते। भगत कबीर साहब कबूलनामा दे रहे ने, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, ये तो जो रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि मैं कित्थे पहुंचे। कहो कबीर तब ही नर जागै। हूं मेरी इत्थे जिहड़ा नर क्या गया, वो क्या गया, मेरी इंसानियत की सोच वो कदों जागेगी। जम का दंड मूंड महल आ गया है। इत्थे कोई सच्ची मुच्ची कोई यमदूत नहीं दिखाया तुहानूं, जिहड़ा कहानियां च बचपन तो असीं सुनते आए हैं। एक यमराज हुंदे ने, वो मੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਝੋਟੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਯਮਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਫਿਗਰ ਦੱਸਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि तुसी पाप करोगे तो तुहानू वो कुटेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कड़ाए च पाएगा कुछ समथिंग एंड समथिंग। वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। नर ताइयों जागदा। देखो ये कदों दी गल्लां हो रही ने, ये 550 पौने 600 साल पहले दी गल्लां अज हो रही ने, और वो गल्लां अज भी लागू ने। चले जाओ इत्थों दी, मोबाइल फोन हाथ च फड़िया हुंदा है, गड्डी चल रही हुंदी है, अचानक अगों पुलिस वाला जो हाथ दिंदा वो कहंदा ओहो मेरे तो गलती हो गई, दिओ 10,000 रुपये जुर्माना। तां जागदा है इमीडिएटली, ओहो ये गलती हो गई। पहले क्यों नहीं समझ आई गलती कि जे मैं मोबाइल फोन से गल करते हुए ड्राइव करांगा, भावें मेरा जिन्ना मर्जी ड्राइविंग स्किल होवे, मेरी अटेंशन उधर है जिधर गल हो रही है। दिमाग जिहड़ा है वो लिमिटेड है ना, हालांकि सोच लिमिटेड नहीं है। एट अ टाइम तुसी मल्टीटास्किंग कर सकते हो, पर वो मल्टीटास्किंग किन्नी को कर लोगे। गड्डी चला रहे हैं, सामने राइट और लेफ्ट तो कोई भी आ सकता है, मेरा विजन सिर्फ सीधा जा रहा है और ध्यान मेरा गल वाल लगा, अचानक कोई अगे आ गया, फिर वो पहले क्यों नहीं ध्यान आया जिस वेले पुलिस वाले ने हाथ दिता कि हुण जी 10,000 रुपये का चलान होना है, 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा, उस वेले क्यों याद आया। ये देखो भगत कबीर साहब तो पहले ही कह रहे हैं, पौने 600 साल पहले कह रहे कि तेरे नाल लगा होने लगा। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लग गया, कि जो पीनलाइज होना है ना, जो सजा लगनी है, ताइयों होश आती है। तो कर्मां नूं पहले ही सवार लिए ना, अपने एक्ट्स नूं, जे मैं तनख्वाह लै रहा किसी कंपनी चों, मैं जॉब करन जा रहा, तो अपने काम नूं पहले ही ढंग नाल कर लवां, इस तो पहले कि जम का दंड मूंड में लागे वाला काम उत्थे भी हो जाए, चल भाई तेनों नौकरी तो बाहर कढ रहे, तू काम सही नहीं कर रहा। जे किसी नाल चोरी ठगी कर लो तो फड़े जाओ, तो फिर जेल जाना है, उस तो पहले चोरी ठगी बंद कर दो। समझते है ना, सानू समझते है कि जी ये काम करन नाल साडे नाल गलत हो सकता है, असीं फिर वही काम करते हैं।
और पौने 600 साल 550 साल पहले के भगत कबीर साहब सानू कह रहे हैं कि कहो कबीर तब ही नर जागे जम का दंड मूंड में लागे। जरूरी है पिनलाइज होने की वेट करनी है? अपने कर्मां नूं असीं ओहो जिहा सिद्धा क्यों नहीं कर पाते? और पुछन किनू जाना? किसी नूं नहीं, सब पता है। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं पर है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਰੇ। जानते बुझते हुए ऐसी गलतियां या गलत काम कर रहे हैं। फिर भगत कबीर साहब कि अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं? मैं तो अपने कर्म सीधे रख सकता ना, मेरे हाथ के अंदर तो सिर्फ एक्शन है ना, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है ना जी। रिजल्ट तो उदा का ही होएगा जिदा के मेरे कर्म होंगे, जिधर वाल मैं चलांगा। चंगे काम करांगा तरक्की मिलेगी, चंगे काम नहीं करांगा नौकरी तो कट देता जाऊंगा। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करांगा, बड़े वधिया तरीके नाल अपने डेस्टिनेशन पे, अपने घर, अपने ऑफिस जिथे जा रहे हैं पहुंच जाऊंगा। जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करांगा हो सकता एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता मेरा चलान हो जाए, हो सकता मैंने पेनल्टी लै जाए। तो मेरे कर्मां ते डिपेंड है। मैं अपने कर्मां नूं सीधा रखना और किसी को पूछना नहीं है। ध्यान रखना, किसी को पूछन ना चले जाना। तुहानूं सब पता है, बस वो खोजना है। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। किसी को पूछन नहीं जाना। तुहाडे कोल एक खजाना है, जे ज्यादा गल है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सब कुछ, हर चीज का जवाब है। हर चीज का, हर चीज का जवाब है। सृष्टि की उत्पत्ति तो लैके अज तक का, चाहे आखिरी अखर इहदे विचकार गुरु तेग बहादुर साहब का लिखिया है, पर वो सारा कुछ 1200 साल पहले तक दे भी इहदे विच विचार हैगे ने। भगत नामदेव, भगत बैनी, भगत पीपा, वो सारा कुछ अज भी एप्लीकेबल है, अज भी एप्लीकेबल है। बड़ी हैरानी की गल है कि वो सारे भविष्य वक्ता सीगे जिहड़े शरीरिक रूप च आए सी? नहीं, उन्होंने सच की गल की है, उन्होंने इटरनल ट्रूथ लिखा है और असी सिर्फ इसनूं समझ लीजिए। मैं यह नहीं कहता जी कि स्कूल की मैथमैटिक्स की बुक्स छड़ दईए, नहीं, बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब च सानू सिक्ख्या ही है मिलती है कि सिक्ख्या लो। जे सिख कवाना तो सिखो हर चीज़। जे साइंस की बुक है, नवीं खोजां, नवीं काढां, सब कुछ होया है, तुहानू सीखना जरूरी है। तुसी अपनी इंग्लिश की किताब नहीं छड्डनी, तुसी अपने किसी सबजैक्ट की किताब नहीं छड्डनी। एक जीवन जांच वास्ते गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अंकित एक एक अखर, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु तक तुहाडा गुरु है। ते गुरु नूं खाली गुरु मनो ना, गुरु दी मनो, तां असीं सिख कवा सकते। सो अज दी विचार इत्थे ही संकोचते हैं जी। होइयां भुलां चुकां लई खिमा दवो असीस के गुरबाणी गुरमत पढ़न समझन ते विचार करन दी समर्था आ जावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चैनल भाई साहब जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी सिੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ सिक्खी जीवन जांच ਅਤੇ गुरु साहिबान ਦੇ जो सानू संदेश ने मानवता ਦੇ प्रति इन्हां ਨੂੰ समर्पित है। इस चैनल ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।